Hello and welcome to Versus. We are here in Kota, in fact in a career institute, and we are here because there's something that's worrying us. We are discussing why in the past 5 days, 3 students have committed suicide. These are all students who were studying for the IITG exams. Now I have with me some students, some parents, some psychiatrists who are here at the institute, and I'm going to start by asking them, why does this happen and what are the solutions? Because over the years that I have reported in Kota, I have seen that the graph of suicide goes up and down, but it never really flattens out. So what are the solutions? We have all stakeholders here. Let me start by asking this very bright young girl from Lucknow. What's your name? Simran. Simran, Mishra. Simran, you come all the way from Lucknow to study here. Do you miss home? Yes, of course, yeah. What drove you to come here? Because of the I wanted to become a doctor since I have completed my 12th, because I'm graduated one from Mumbai. I did my graduation from English literature, and I teach. You want to do medicine. Yeah. Okay, but is there some stress here? Because we're noticing in the recent past, you must have read in the papers, about 3 students have committed suicide in the past 5 days. As we heard about the recent suicides in Kota, just because if we talk about the Allen staff, teachers, or we can say the counselors, psychology counselors, they are absolutely very, very good. They are absolutely very cooperative. And if we say if you ask about the teachers, the stress level is very low, because a child. You feel it's low. Yeah. Because so why the suicides? The cause of the suicide is the hopelessness, loneliness, and the emotional breakdown, and the not feeling the mental health is very not good. So students face the suicide thing, or they think to commit a suicide. Okay. So she says there's not so much stress. ये कहते हैं कि stress नहीं है, लेकिन तो क्यों हो? ये क्या कारण है suicide का? नहीं, सुसाइड का कारण देखिए, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सब बच्चे अलग अलग परिस्थिति से आते हैं, सबकी पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, अलग अलग समझ होती है सबकी, तो इस वजह से भी सुसाइड हो सकती है। कोई मतलब सबका एक जैसा परिस्थिति तो रहता नहीं है, किसी के फाइनेंस क्या परिस्थिति, क्या पेरेंट्स का कोई फाइनेंशियल उस पर वो कोई अच्छे फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हैं, थोड़ी सी लो फैमिलीज भी आते हैं, लेकिन उनकी एक ही चाह रहती है कि हम IIT में जाएँ और मेडिकल कॉलेज में जाएँ, लेकिन इस वजह से दोनों का थोड़ा सा परिवार का मतलब कि परिवार का बोझ भी रहता है, प्रेशर भी रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार ने कोई लोन लिया है, ज़मीन बेचा है, वो भी बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे रहता है। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तमन्ना लेके आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो कोई ज़मीन गिरवी रख के आते हैं, तो इस वजह से उनका प्रेशर बना रहता है और उस लायक मेहनत कर नहीं पाते हैं, इस वजह से भी सुसाइड पे चले जाते हैं। Okay, I have Dr. Harish Sharma who's here. He's been given motivational talks to students. तमन्ना लेके आते हैं बच्चे, लेकिन कभी-कभी उस तरह से मेहनत नहीं कर पाते हैं। मैम, मेरा सोचना थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि बच्चे के जो सबसे प्राइम टीचर होते हैं वो उसके माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में सीखता है, लर्न करता है। अब बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स अगर फाइनेंस को लेकर आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, तो बच्चा एक ही मैसेज लेता है कि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो आपस में लड़ना चाहिए, क्योंकि वो सीख तो यही रहा है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उदास हो जाते हैं, तो बच्चा सीखता है कि जब फिज़िकल प्रॉब्लम आ जाए तो फाइट करने की बजाय उदास होना या रोना ज़्यादा एक ऑप्शन होता है। तो छोटी छोटी पेरेंट्स से कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पर अगर आप बच्चे को देखेंगे, तो यहाँ पर अगर अकेले आप पढ़ाई करेंगे और माँ बाप अगर उनको अकेले ही पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो उसका कोई बडी नहीं बनता, फ्रेंड्स नहीं होते उसके, वो सोता है और पढ़ाई करता है और कन्वर्सेशन उसका कम होता है। तो हमारे ब्रेन में जो थॉट प्रोसेसिंग यूनिट है वो लूप में चलने लगती है, तो उससे आने के लिए उसके पास कोई समाधान नहीं होता, कोई कन्वर्सेशन नहीं है। पेरेंट्स भी बच्चों को फ़ोन इसलिए देते हैं ताकि वो उनके टच में रहें, बट उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, इवन उनको वरी ज़्यादा दे देते हैं। ये एक फैक्टर है, बाकी और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जब पढ़ने आता है तो उसके पेरेंट्स को उसको मोटिवेट करना सीखना होगा, और उससे पहले खुद सीखना होगा कि बच्चा अकेला जो इतनी मेहनत से 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो उस पढ़ाई का उसके ऊपर कितना स्ट्रेस है। ठीक है, तो 15 घंटे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मेरे साथ जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कुछ पेरेंट्स भी हैं। ये भरतपुर से आई हैं, अपने बच्चे के साथ यहाँ पर रहेंगी, एंड शी इज़ हियर टू हेल्प एजुकेट हर चाइल्ड। शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बिहार। आपने सुना डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा कि 15 घंटे बच्चों को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, और काफ़ी बार जो स्ट्रेस है, जो पेरेंट्स का घर का स्ट्रेस है, आपकी जो आकांक्षाएँ हैं, आप बच्चों पर एक तरह से प्रोजेक्ट करते हो। मैम, एक्चुअली मेरी जो बच्ची है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेंटली। वो लास्ट जब उसका यहाँ एडमिशन कराया तो वो एक रेयर डिजीज़ से थी,
लेकिन यहाँ आकर उसे इतना पारिवारिक माहौल मिला और इतना अच्छा यहाँ से फिजिकली मेंटली उसे मनोबल मिला कि आज वो इतना सब कुछ कर पा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बिहार से आए हैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए, क्यों आए हैं? आपको लगा कि स्ट्रेस था या आपको कुछ डर लगा यहाँ पे सुन के? नहीं, इसलिए आए हैं कि बच्चे का देखभाल करेंगे, अच्छा से बच्चा पढ़ाई करेगा। लेकिन ठीक ही है, पढ़ाई लिखाई तो ठीक ही चल रहा है, ठीक कर रहा है। पर आपने सुना डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा कि कभी कभी जो फाइनेंशियल बोझ है वो है, आप बच्चों को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर देते हैं वो बात। ठीक है। I have with me Dr. M.L. Agarwal. He runs a helpline called Hope. Hope ऐसी helpline है जो कोटा में जो काफ़ी मदद कर पाई है, लेकिन the problem is over 1 lakh, nearly 2 lakh students study in Kota. Can Hope, the helpline for students in distress, can it reach out to everybody? Can you reach out to all the students? Because there are not so many lines, and does everyone know about it? No, everybody doesn't know. हेल्पलाइन की जो पब्लिसिटी होनी चाहिए जिस तरह से नहीं हो रही, कुछ कारण है, लेकिन फिर भी हेल्पलाइन अच्छा कर रही है। हेल्पलाइन जो अभी तक 7,485 बच्चों की हेल्प की है, जो कॉल्स वहाँ पे आई है, वो केवल टेलीफोनिक जो कॉल आती है उसी में हेल्प करती है। उसमें 500 बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सुसाइडल टेंडेंसी थी या सुसाइड पॉइंट से उनमें लाए हैं। तो ये Were they all students who were studying for either the IIT or the medical exam? Yeah. These are all students from the IIT और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और जो हेल्पलाइन को पहुंचना चाहिए हर जगह, उसमें थोड़ी दिक्कत तो है कि हर साल बच्चे बदल जाते हैं और हर साल पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, मोर हैंड्स की ज़रूरत होती है, और हम लोग के पास वो है नहीं। तो यदि उसको ज़्यादा हम हेल्पलाइन को पॉपुलर करें तो बहुत सारी सुसाइड और लाइफ्स और बच सकती हैं। Dr. Devendra Vijayvargiya, I thought something very relevant that Dr. Agarwal said. He said of the 500 calls that came on Hope, they were all students who were studying for med exams or IIT. So that means there is stress, right? Yes, there is definitely stress. But the problem is that the most common cause of suicide is depression. And depression is a biological illness. There are genetic reasons, there are psychosocial reasons also. So the patients who are genetically vulnerable, when they face stress, they get precipitated for the depression, and which may lead to sometimes suicide. So when a student reaches Kota, he is full of enthusiasm, energy and hope. But after 1 month, when he appears in a test, common test, weekly test, and he sees performing poor, or his parents pressurize him for a good performance instead of motivating him. So what parents want, that he must perform consistently well, whereas a student feels hampered, handicapped in performing consistently well. So he finds in a conflicting situation between parents and coaching institute. Okay. So, you know, also somewhere people have been blaming the coaching institute, but it's not really the fault only of the coaching institute. Like all the doctors were pointing out, you also have to counsel parents and you have to kind of involve society also. Now, Gauri, you counsel students when they come in. Do you also counsel the parents? Because like we're saying, it's the easiest thing is to blame the coaching institute. But who is sending the children to the coaching institute? Parents are sending. But parents को ये समझना चाहिए कि कोटा में अगर बच्चा रह रहा है तो उनका कनेक्शन वैसा ही रहना चाहिए जैसे कि वो उन्हीं के पास रह रहा है। जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ होपलेसनेस। तो वो सिचुएशन पेरेंट्स को पता लग जानी चाहिए और पेरेंट्स को एक्टिव हो जाना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा हमारी नीड में है। So do you counsel parents also? Yes, we counsel, and there is sometimes there is a conflict between parents and their children. तो वो भी कई बार पेरेंट्स आते हैं कि हमने इसलिए भेज दिया है घर से दूर कि ये हमारी नहीं सुन रहा है, तो यहाँ रहने पर वो बच्चा और ज़्यादा पेरेंट्स से दूर हो जाता है। So कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको यहाँ भेज दिया है क्योंकि वो पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है, चलो अभी हम सबको पकड़ते हैं। No, it's not the cause that I came here, but the 8 months journey of my blaming coaching is the worst because I was also depressed in the starting. I was also feeling lonely. I was also getting depressed of everything. मतलब यहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है वो अभी तक मैंने नहीं देखा था, तो मैंने एकेडमिक काउंसलर से कंसल्ट किया। सर ने जो आपको लगा यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे, एलन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आई वॉज प्राउड ऑफ। Yeah, there is a phrase goes in Allen that मुस्कुराइए आप एलन में है। No, we are not doing any marketing for any institute here. अच्छा, you tell me, see, you've heard lots, जो अभी आपने सुना कि यहाँ पे टीचर्स ने बोला, डॉक्टर्स ने बोला,
लेकिन हमने ये भी देखा कि स्ट्रेस है, जो 500 लोगों का हेल्प जो फ़ोन करते हैं हेल्पलाइन पे, तो क्या होता है कि सडनली 12th की स्टडी से क्या ये स्टडीज़ बहुत मुश्किल हो जाती हैं? नहीं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब कुछ अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं, कुछ कहीं और से पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका एक साथ फाइट होता है। तो टेस्ट में जब टेस्ट होता है तो कोई बच्चे पहले से जिसका बेसिक ज़्यादा मजबूत है तो ज़्यादा निकल जाते हैं, उसकी वजह से जो बच्चे कमज़ोर हैं वो सोचते हैं कि मैं भी उसकी समान कर सकूं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप लोग निराश होते हो क्या कभी कभी स्टडीज़ को लेकर? वो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, लेकिन एक लेवल पे बच्चों को खुद इतना क्योंकि ये आईटी की मेडिकल की प्रिपरेशन उतनी बड़ी लेवल की चीज़ है, तो बच्चों को एक लेवल के बाद खुद उतनी मेंटेलिटी डेवलप कर लेनी चाहिए कि एक आध पेपर अगर बिगड़ भी गया तो फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको टारगेट मेन अपना आईआईटी और मेडिकल का एग्ज़ाम अच्छा करने का टारगेट रखना चाहिए। मेंटेलिटी गड़बड़ाने के कारण ही वो सुसाइड वगैरह होते हैं। ओके, आई वांट जस्ट ऑल ऑफ यू, एनीबडी हियर, टू जस्ट व्हाट आर द पॉजिटिव मैसेजेस दैट यू वांट टू गिव टू अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग? I think the positive you should do what you like. आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये आपसे कोई कहे कि मेडिकल में जाना है तो वहीं ज़बरदस्ती आपको कोई भेजे, या आईआईटी में जाना है। आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। ये माँ बाप के और चिल्ड्रंस की भी एक बातचीत होनी चाहिए, क्या बच्चे को पसंद है, क्या उसको बनना है। लिव योर ओन ड्रीम्स। आप बोलिए, व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक ही सेड समथिंग रियली रेलेवेंट। ही सेड डू व्हाट यू लाइक टू डू। आई थिंक हमें ना सिर्फ हमारा 100% देना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सही है हमारी एक तरह से। हमें ये पता होना चाहिए, हमें एक्चुअली इनकी तैयारी जो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमारी एफिशिएंसी है, क्या हमारी कैपेसिटी है। तो हमें बस हमारा 100% देना चाहिए ताकि हम अच्छा कर सकें। So thank you very much. We'll be coming back for more. We've got the children here and all the other stakeholders. So we're going to take a very short break and come back to you with more voices right here from Kota. Well, we are here in Kota. There have been about 3 suicides in the past 5 days, and we're trying to understand from teachers, parents and children why this happens and what are the solutions. So I have with me another child here. Give me your name. अंकित राज। Ankit, what do you want to say? क्या बोलना चाहते हैं आप? मैम, जैसा भी मैम ने कहा कि स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन लेता है तो वो अपने घर वाले अपनों के साथ ही उस सोच के ही लेता है। तो पेरेंट्स को थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, उनको मतलब हमेशा बच्चों के मार्क्स वगैरह ये सब सुन के उन्हें मतलब सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगले बार हो जाएगा, होता ही है टेस्ट इसलिए ये सब। और उन्हें ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं बताना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो आपके घर में भी आपको कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? नहीं, मैं मतलब आप जनरल बात बोल रहे हो? नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्त लोग कभी कभी हमसे डिस्कस करते रहते हैं ये सब। तो मतलब हम देखते हैं कि ज़्यादातर अगर कोई भी थोड़ा सा भी डिप्रेस होता है तो वो पढ़ाई को लेके नहीं, वो ये सोचता है कि ये करके आए हैं, ऐसे मेरे पेरेंट्स ने किया तो नहीं होगा तो क्या होगा। वो ये नहीं सोचता कि मेरा करियर नहीं बनेगा, वो ये सोचता पेरेंट्स का क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही सेड वो पढ़ाई को लेके कोई डिप्रेस नहीं होता है। यस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन? मैम, ये पेरेंट्स से किसी से कंपैरिजन ना करें और हमेशा बच्चों के साथ मोटिवेट ही रहें, वो अच्छे रहें। क्या कि मेन बात है डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कंपैरिजन करना और नेगेटिव। आप बोलिए, यू वांटेड टू से समथिंग? या मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, वो आज नहीं तो कल कभी भी जरूर आएगी। Okay, that's an important point. I think if you don't do IIT Gauri, you can do something else, right? Sure. There are other career options. Yes, we definitely give other career options to the students. There are there's a long list of career options doing in a field of medicine and in engineering side also. So we educate them and we segregate them according to their marks when the need arises. Okay. Great. So what she's saying is that there are more career options apart from just engineering. We don't have very much time left. Can I quickly get a mother in? Yeah, actually I'm a mother of a child. From 2 years he is here. He was a very shy personality. Apart from all our saying कि depression हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. Institutions even build up in the whole way. Not only one thing कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं, सब कुछ के लिए वो build up करते हैं. आज मेरा बेटा बहुत ही individual है, वो यहीं पे ही है. And he's taking part in my talk show. Okay, so we don't have much time left. You wanted to, I think let's end on a note of hope. Dr. Sharma, आप कुछ कहना चाह रहे थे. He wants to give a motivational message.
मैं कहना चाहता हूँ इस देश से अगर एक डॉक्टर कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक इंजीनियर कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर एक विवेकानंद कम हो जाए तो फ़र्क पड़ता है, लता मंगेशकर कम हो जाए तो फ़र्क पड़ता है, सचिन कम हो जाए तो फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि डॉक्टर और इंजीनियर के आगे भी, जैसे डॉक्टर गौरी ने कहा, ये सब चाहते हैं कि माँ बाप को इन 2 डॉक्टर और इंजीनियर्स के आगे भी सोचना चाहिए। और कितने बड़े बड़े टैलेंटेड हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं, यही मेरा मैसेज है। I think that was really a very lovely message that he gave कि अगर एक विवेकानंद कम हो जाए तो that will be a loss to the country. But earlier before talking to the children, I spoke to the collector of Kota and asked him what can the government do, what can the district administration do to help us resolve this problem. So the worrying trend of suicides in Kota, especially of students as young as 17 years old, what can the district administration really do about this? Well, I have with me Mr. Muktanand Agarwal. He's just taken over as collector just about 2 days ago, but he says it's something he will look at as priority. Muktanand ji, शायद अगर हम आपका एज भी देखें तो मेरे को लगता है आप इन बच्चों से भी, इन जो ये स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप एक तरह से एज ए ह्यूमन लेवल आप रिलेट भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस मैम, बिल्कुल मैं रिलेट करता हूँ। और मेरी अपनी फैमिली से अलग अलग समय पर मेरे कज़िन्स यहाँ रह के पढ़े हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ साइंस मैथ्स एंड आई वाज आल्सो अबाउट टू एंटर दिस थिंग, बट समहाउ आई चेंज्ड माय डायरेक्शन ऑफ द करियर. But I can relate with them and what are their problems, what is the nature of the competition before them. Okay. Muktanand ji, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है, the graph of suicides in Kota goes up and down, but कभी flat नहीं होता है, and that is what is worrying कि despite so many interventions ये flat नहीं होता है ग्राफ। तो आपको क्या लगता है प्राथमिकता पे, today you had a meeting I think with stakeholders, तो आपको क्या लगता है कि 2 स्टेप्स आप बताइए जो आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है इसमें? सबसे बड़ा जो हमारा सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा भी है इन माय ओपिनियन, देयर इज़ अ हेल्पलाइन कॉल्ड होप. दिस हेल्पलाइन assists the students, like the students which are about to commit suicide. Many of them have called on this helpline. हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं साइकेट्री के, और जो मेडिकल कॉलेज का साइकेट्री डिपार्टमेंट है उसके 4-5 सीनियर डॉक्टर्स और करीब 11 काउंसलर्स इसमें 24/7 बैठते हैं, और करीब 7,400 के करीब आज तक इन्होंने कॉल्स अटेंड किए हैं. कई स्टूडेंट्स जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में थे, सम ऑफ देम had already taken a medicine for committing a suicide and then they had called them. उनकी भी लाइफ्स इन्होंने सेव की हैं, बचाई हैं. This helpline needs to be strengthened. I think today's meeting, it was an outcome of today's meeting that we should strengthen this helpline. It should be popularized. More students should be made aware about this helpline. They should call on this number, and there is a very systematic manner to deal with such patients. Some of them, I was told that the students are already there are symptoms of depression in them when they enter the city, when they come, तभी से उनमें वो symptoms होते हैं, but उनका tracking नहीं हो पाता. कुछ में वो सिम्टम्स यहाँ के माहौल में रह के, पेरेंट्स से दूर रह के, कंपटीशन देख के, स्ट्रेस में आके डेवलप होते हैं. कई जो बच्चे यहाँ पर आते हैं मिडिल इनकम फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल इनकम फैमिली से आते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं कभी कभी ज़मीन गिरवी रख के, कभी कभी लोन लेके यहाँ पे आते हैं, एंड देन व्हेन दे रियलाइज दैट दे डोंट वांट टू स्टे इन कोटा, they also realize that the money, the very valuable money of their parents has been locked in. So that creates a psychological pressure on the children. Of course, easy exit policy is a very important component of this whole episode, this whole story. And if we look at the rates, look at the charges which these coaching institutes are charging on the students, then the other charges, जो बच्चों का यहाँ रहने का, खाने का खर्चा होता है, तो ये किसी भी मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ अनअफोर्डेबल थिंग, एंड दे हैव टू टेक लोन फॉर दैट. कुछ लोग उधार लेते हैं बैंक से, या और जब उन पेरेंट्स को लगता है कि वो उनका लोन वापस पे अप नहीं हो पाएगा, उनके बच्चे रिटर्न नहीं दे पाएंगे, तो नेचुरली वो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, या उनको एक साइकोलॉजिकल they just say that we have taken that much of money and you have to do something. Easy exit policy is something that has not been enforced on the coaching institutes, because right now in my understanding there is not an enforcement mechanism
through which we can bind the institutes कि आपको ऐसा करना है. But some of the institutes have a very good easy exit policy. In fact, one or two institutes, they are charging on a pro rata basis, which means that जितने दिन आप पढ़ेंगे उतने दिन का ही चार्जेस लगेंगे. लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी बहुत हार्श पॉलिसीज़ हैं, एंड we have been trying to persuade them, we will further try to persuade them that if they make it more easy, the exit policy, then it will be very the tension can be released, or it will be very helpful. Okay. Yes. Okay, thank you. So the district administration, like you're saying, you are going to take it up on priority. I want just you to give just one message to the students. As somebody who yourself cleared competitive exams and got where you did, and you dealt with competition and stress, I think, I'm sure, when you were giving the exams, what is, just before we end, what's your one message for students of Kota? My only message is that life is the most important thing. Whatever we are doing is for the sake of our own life. Life is the most important thing. Whatever we do in life, that comes secondary. लेकिन जीना सबसे ज़रूरी है. खुद मैंने भी ऐसी चीज़ें फेस की हैं लाइफ में जब मुझे लगता था कि अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी सुसाइड, अपना जीवन ख़त्म करना कभी भी सलूशन नहीं है. वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू अस आफ्टर सुसाइड. So it is never a solution. We should always try to find a solution. Even if we can't find a solution, life itself is the most valuable thing. We should respect it. We should live our life. We should never end our life. Thank you very much. So that's Kota Collector speaking to us about the worrying spate of suicides. Well, that's all we have time for now on Versus, but coming up after this break, all the news.